Hello, my friends. I am back again. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का मीनिंग क्या होता है। एक काफ़ी छोटी सी वीडियो थी, 15-20 मिनट की। आप अगर देखना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो अभी जल्दी से देख लेना। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, है ना। इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज are mainly classified into two types: observational studies and interventional studies. ठीक है। हमारे पंजाबी में ना एक कहावत है, वेखी जा छेड़ी ना। तो सर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी एक इसी तरह से है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में देखता रहे, इंटरवीन मत करना। और इंटरवेंशनल स्टडीज, एज द नेम सजेस्ट, वी हैव टू डू एन इंटरवेंशन। ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: descriptive study and analytical study. You are following me? Epidemiological studies, observational studies, interventional studies. Observational studies is further divided into two types: descriptive study and analytical studies. So this is the broad classification of epidemiological studies, and we will discuss about descriptive study. लंग कैंसर इज कोज ड्यू टू स्मोकिंग। सर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, लंग कैंसर इज कोज ड्यू टू स्मोकिंग। सो फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एन हाइपोथेसिस दैट lung cancer is caused due to smoking, we require descriptive study. We describe the disease in terms of time, place and person in case of descriptive study. And now we will move forward towards another type of observational study, that is analytical study. Analytical studies are used for testing the hypothesis. Analytical study is further classified into mainly four broad categories: cross-sectional study, cohort study, ecological study and case control study. And next is our interventional study. In this study, we intervene for confirming the hypothesis. तो गाइज आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना। Epidemiological studies is divided into two types: observational studies and interventional studies. Observational study is further divided into two types: descriptive study, analytical studies. Now take the example, smoking is caused due to lung cancer. First of all, we have to formulate the hypothesis. We formulate the hypothesis with the help of descriptive study. We test the hypothesis with the help of analytical study. We confirm the hypothesis with the help of interventional or experimental study. So this is the broad outlook. Cohort study and case control study. दोस्तों अगर मैं आपको एक सिंपल एक लाइन में आंसर देने को कहूँ कि केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी में क्या डिफरेंस है, सोचो सब। एक लाइन में आंसर मांग रहा हूँ मैं। आई डोंट वॉन्ट वेरी बिग पैराग्राफ्स और 10 और 20 पॉइंट्स, सिर्फ एक लाइन में। गैस इट। आंसर विल बी case control study is backward looking study and cohort study is forward looking study. This is the core difference between case control and cohort study. Cohort study is forward looking
and case control is backward looking. Smoking is also a risk factor for lung cancer. ठीक लग रहा है सुनने में. Smoking is the cause of lung cancer. Smoking is exposure for the lung cancer. हाँ यस, ये भी ठीक लग रहा है. So smoking can be called as risk factor, cause and exposure. And lung cancer can be called as disease outcome. So if smoking is a risk factor, lung cancer is a disease. If smoking is the cause, lung cancer is the effect. If smoking is the exposure, lung cancer is outcome. Cohort study. Guys, please keep following me. Epidemiological studies divided into two types. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, इंटरवेंशनल स्टडीज. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में और एनालिटिकल स्टडीज में. एनालिटिकल स्टडीज को हमने फर्दर 4 स्टडीज में डिवाइड किया: कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोहोर्ट स्टडी विद यू. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सर अभी 2024 चल रहा है, मैंने 100 स्मोकर्स लिए और 100 नॉन स्मोकर्स लिए. कब? अभी 2024 में. इनको मैंने फॉलो किया. कब तक? 2038 तक 20 लंग कैंसर्स हुए और इस केस में 10 लंग कैंसर्स हुए. तो गाइज यू कैन सी दिस इज फॉरवर्ड मूविंग स्टडी फ्रॉम present date to the future date. So cohort study is forward study. So guys, as we are studying epidemiology, so making sure that you all understand that in epidemiology it is very important to take the comparison group. Comparison group, as in this study, as in the cohort study, we have taken 100 non-smokers as the comparison group. Why? Sir, why it is important to take the comparison group? What is the role of taking the comparison group? Let's take an example. There are 20 students who are preparing for an competitive exam. 10 students have very good resources and facilities, and other 10 students don't have good resources and facilities. Okay, 10 students, good resources, सर मैंने इन 20 स्टूडेंट्स को फॉलो किया टिल द डेट ऑफ एग्जाम. यस, out of 10 students who had good resources, 5 of them get selected, and out of 10 students who don't have good resources, 3 of them got selected. So how it is possible? Without good resources, 3 students got selected. So I can say only good resources is not the cause of selection. For selection I need consistency. For selection I need motivation. For selection I need regular efforts. For selection I need good sleep. For selection I need physical health. For selection I need mental health. So for the selection there are many factors which are contributing. Only good resources is not the factor. If I have to calculate the strength of association between selection and good resources, I have a term which will tell you about the strength of association. Could you guess? Guess, please. Relative risk. तो सर हमने जो एग्जांपल लिया था, स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर. आउट ऑफ 100 smokers, 20 of them developed lung cancer. So 20 by 100 incidence of disease among exposed, and 10 among non-smoker didn't develop lung cancer. So my value of relative risk comes out to be 2.
सर हमें तो सिंपल टर्म्स में समझा दो सर। मेरे पास एक पेशेंट आया है, मुझे उनको रिलेटिव रिस्क का मतलब समझाना। मैं सीधा सीधा कहूंगा सर, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप में नॉन स्मोकर्स के मुकाबले लंग कैंसर होने के चांस क्या हैं? डबल। बिकॉज रिलेटिव रिस्क इज 2, इफ रिलेटिव रिस्क इज 3, आप में लंग कैंसर होने के कितने चांस हैं? ट्रिपल। रिलेटिव रिस्क इज वेरी यूजफुल फॉर क्लिनिशियंस। रिलेटिव रिस्क सर, इफ रिलेटिव रिस्क इज 1, there is no association. If relative risk is more than 1, association is positive. If relative risk is less than 1, negative association. So the next term is attributable risk. How much cases of lung cancer is caused due to smoking? Attributable risk is given by the formula incidence of disease among exposed minus incidence of disease among non-exposed divided by incidence of disease among exposed into 100. Now let's take an example with the जो सर हम केस डिस्कस कर रहे हैं, smoking is the cause of lung cancer. If after putting the values it comes out to be 60%, means 60% cases of lung cancer is caused due to smoking. As you can see it in the name, attributable risk. How many cases of lung cancer are attributed to smoking? The another example we had taken about good resources, facilities and clearing an entrance exam. How many of them are selected due to good resources and facilities? It is the attributable risk. How many students clear exam due to their good routine and consistency? Out of 100, how many students clear their exam due to motivation and good physical and mental health? Attributable risk is also known as excess risk, absolute risk difference. Now we are moving forward towards another term known as population attributable risk. It is given by the formula, as we can see, incidence total minus incidence non exposed by incidence total into 100. एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क में एक डिफरेंस है, हमें इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड की जगह इंसिडेंस अमंग टोटल लिख देना है। एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सर सिंपल टर्म्स में मुझे इसका मीनिंग समझा दो। सर अगर मैं एक पॉपुलेशन में स्मोकिंग को हटा देता हूं तो लंग कैंसर के केसेस के इंसिडेंस कितना रिड्यूस हो जाएगा? सर मैंने अगर एक पॉपुलेशन में स्मोकिंग को हटा दी तो लंग कैंसर का इंसिडेंस इज रिड्यूस्ड बाय 70%. सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज 70% between smoking and lung cancer. If I remove good facilities and resources, the chances of students clearing the exam reduces by 30%. So, population attributable risk in this case is 30%. So, हमने सर 3 वेरिएबल्स तो पढ़ लिए, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। रिलेटिव रिस्क किसके काम की चीज है? क्लिनिशियन के। एट्रीब्यूटेबल रिस्क किसके काम की चीज है? इपिडेमियोलॉजिस्ट के। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क किसके काम की चीज है? पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर। सर मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को सिंपल टर्म्स में एक बार समझा दो, मैं क्योंकि याद तो कर सकता नहीं, अगर समझ आ जाएगा तो मेरे को लाइफ टाइम तक याद रहेगा। सर मैं क्लिनिक में पेशेंट देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट आता है, स्मोकर है जो, मैं उसको सर सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा। सर आप में नॉन स्मोकर्स के मुकाबले लंग कैंसर होने के चांस डबल है, क्योंकि रिलेटिव रिस्क मैंने जो स्टडी में पाया वो था 2। मैं अब उसको ये तो समझाऊंगा नहीं कि स्मोकिंग के कारण 60% लंग कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू द 60% केसेस ऑफ लंग कैंसर। वो कहेगा मुझे ये सब सुनना नहीं है और उसके काम की चीज़ भी नहीं है। और मैं उसको ये भी नहीं समझाऊंगा कि अगर हम सर स्मोकिंग को हटा देते हैं तो लंग कैंसर का इंसिडेंस 60% 70% रिड्यूस हो जाएगा। वो यार उसको करना क्या है इससे? मैं उसको सिंपल समझाऊंगा, सर आप में
और आप में नॉन स्मोकर के मुकाबले लंग कैंसर होने के चांस डबल हैं। तो फिर रिलेटिव रिस्क इज यूजफुल फॉर क्लिनिशियन। नाउ एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज यूजफुल फॉर एपिडेमियोलॉजिस्ट। सर मुझे ये भी समझा दो सर, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए क्यों यूजफुल है? Epidemiologists study about the disease causation. 70% cases of lung cancer is attributed to smoking. So this is the value. So this is the term which epidemiologist requires, because he wants to know how much cases of lung cancer is caused due to a particular cause, particular exposure, particular risk factor. And now last, पब्लिक हेल्थ मैनेजर और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क में क्या लेना देना है? सर मैं एक पब्लिक हेल्थ मैनेजर हूँ, मुझे एक पॉलिसी निकालनी है जिसमें मैं सर स्मोकिंग सिजेशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर स्मोकिंग से लंग कैंसर रिड्यूस होता है। चलो तो रिड्यूस होता है सर, मैंने अपनी पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क में देखा कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क मान लो सिर्फ 2% आएगा, और मेरे प्रोग्राम की कॉस्ट है 200 करोड़। आपके ऐसे प्रोग्राम चलाने का मतलब क्या है सर? 200 करोड़ आप खर्च रहे हो और 2% रिडक्शन हो जाएगा इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर के केसेस में, तो मतलब क्या है सर ये प्रोग्राम चलाने का? अब अगर सर पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क की 60% स्मोकिंग सिजेशन करा देता हूँ इस प्रोग्राम से, और 200 करोड़ खर्चा भी आ रहा है, लेकिन 60% केसेस लंग कैंसर के रिड्यूस हो रहे हैं, तो सर बढ़िया है ना? ऐसा प्रोग्राम मैं चलाऊंगा। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क मेरे काम की चीज है कि मैं ये प्रोग्राम अगर लेके आता हूं तो इस डिसीज के इंसिडेंस में इतना फॉल आ जाएगा। सो सम theoretical points. Cohort study is also known as forward looking study. Cohort study is also known as prospective study. Cohort study is also known as cause to effect study. Cohort study is also known as risk factor to disease study. Cohort study is also known as exposure to outcome study. Cohort study is also known as follow-up study. Cohort study is also known as incidence studies. सारे पॉइंट समझ आ गए, लास्ट वाला पॉइंट समझा दो सर। कोहॉर्ट स्टडी को इंसिडेंट स्टडी क्यों कहते हैं? सर मैं 2024 में अपनी स्टडी शुरू कर रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ 2038 तक, 2038 तक, 2024 से 2038 तक। सर मैं स्मोकिंग को रिस्क फैक्टर मान के स्टडी कर रहा हूँ और लंग कैंसर देख रहा हूँ 2038 में। सर 2024 से लेके 2025 तक 2 लंग कैंसर के केस आए, 2025 से 2026 तक 3 लंग कैंसर के और केसेस आ गए, तो सर मैं इंसिडेंस भी देख पा रहा हूँ इसमें। सो कोहॉर्ट स्टडी इज आल्सो नोन एज इंसिडेंट स्टडी। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फ्रेमिंगटन हर्ट स्टडी। Who is Framingham? Framingham is a scientist. It seems after listening the term. No, Framingham is a place in USA. ठीक है सर, अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ। फ्रेमिंगटन एक जगह है यूएसए में। 1948 में हमने यहाँ एक स्टडी बिगिन करी जो कि एक कोहॉर्ट स्टडी थी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी थी। तो इसमें ना सर हमने एक 4000 से 5000 स्टडी सब्जेक्ट्स लिए, उसको 2 ग्रुप्स में बांट दिया, एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मीन्स स्टडी सब्जेक्ट्स विद द रिस्क फैक्टर्स। इस स्टडी में हमने बहुत सारे रिस्क फैक्टर स्टडी किए, ओबेसिटी, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, और हमारा आउटकम जो स्टडी आउटकम था वो था कोरोनरी हार्ट डिसीज। ठीक है सर, 1948 से लेके अब तक ये स्टडी चल रही है। हम हर 2 साल में कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए उन स्टडी सब्जेक्ट्स को स्क्रीन करते हैं। सो फ्रेमिंगटन हार्ट स्टडी 1948 में यूएसए में शुरू हुई एक स्मॉल टाउन में फ्रेमिंगटन। इसमें हमने 4469 स्टडी सब्जेक्ट्स लिए, उसको हमने 2 में बांट दिया, exposed and non-exposed. Exposed means with the risk factors. There is a big list of risk factors which we are going to study, and I follow up them every 2 years. We screen them for coronary artery disease, coronary heart disease. So this is the very popular cohort study.
तो सर कोहॉर्ट स्टडी के यहाँ बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि कोहॉर्ट का मतलब क्या है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोब। क्या हम एक मोब को कोहॉर्ट कह सकते हैं? थिंक थिंक थिंक। कैन mob can be called as a cohort? The answer is no. Cohort is a group of people having same characteristics. In a mob, people come from different places. We don't know anything about them. So mob can't be called as a cohort. And let's take another example. There are 20 interns posted in community and family medicine department. क्या हम उनको cohort कह सकते हैं? The answer is yes, because all of them share the same characteristics. All of them are doctors. All of them have done their MBBS. Now, take another example. There is a class consisting of 100 students who are attending a lecture. Can be they called as a cohort? The answer is yes. I can further divide this class into two cohorts. One cohort of boys, one cohort of girls. Out of the 160 of them are boys and 40 of them are girls. So there can be two cohort among a single cohort. So cohort, group of people having same characteristics. And now we will move forward towards case control study. Are you along with me? Epidemiological study was divided into two types: observational study and interventional study. Observational study is further divided into two types: descriptive study, analytical studies. Analytical study was further divided into four types: case control study, cohort study, ecological study, cross sectional study. कोर्ट स्टडी हमने अभी पढ़ाई करी है, केस कंट्रोल स्टडी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केस कंट्रोल स्टडी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2024. I took 100 cases of lung cancer and 100 cases without lung cancer. मैं अब टाइम में पीछे गया। क्या टाइम मशीन है क्या मेरे पास? नहीं नहीं नहीं। मैं टाइम में पीछे गया 2014 तक, टाइम मशीन से नहीं, बाय हिस्ट्री टेकिंग। मैंने इन 200 से, इन 200 स्टडी सब्जेक्ट से पूछा कि 2014 से लेके अब तक क्या आपने कभी स्मोक किया? कुछ का जवाब था हाँ, कुछ का जवाब था नहीं। सो इफ देयर आर 100 केसेस ऑफ लंग कैंसर, उनमें से 50 ने कहा यस वी स्मोक्ड, एंड 100 केसेस विदाउट लंग कैंसर, उनमें से 20 ने कहा वी smoked. So among 100 cases of lung cancer, 50 were smokers, and among 100 cases of non-lung cancer, 20 were smokers. So strength of association in case of case control study is calculated by odds ratio. मुझे ये टर्म समझने में बहुत दिक्कत होती थी, मैं तो हमेशा याद करके जाता था AD/BC. So let's create an 2/2 table. Disease present, disease absent, risk factor present, risk factor absent. So if there are 100 cases of lung cancer, out of them 50 were smokers and 50 were non-smokers. If there are 100 subjects without lung cancer, out of them 20 were smokers and 80 were non-smokers. So odds ratio means incidence of disease among exposed divided by incidence of disease among non-exposed. इतनी बारी भरकम लाइनें बोल दी हैं, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। इंसिडेंस ऑफ डिसीज अमंग एक्सपोज्ड, ओड्स ऑफ डिसीज अमंग एक्सपोज्ड। अगर सर स्मोकर्स को मैं देखूं तो 50 स्मोकर्स में डिसीज हुई एंड 20 स्मोकर्स में डिसीज नहीं हुई। सो ओड्स ऑफ डिसीज अमंग एक्सपोज्ड, डिसीज एक्सपोज्ड केसेस में हुई
और डिसीज एक्सपोज्ड केसेस में नहीं हुई। Divided by odds of disease among non-exposed, it comes out to be AD upon BC। नहीं समझ आया तो एक बार 2/2 टेबल अपने सामने रख के ये 2 मिनट वीडियो को रिमाइंड करके देखें। इफ इट कम्स आउट टू बी 1, देयर इज नो एसोसिएशन। इफ इट कम्स आउट टू बी more than 1, there is positive association. If it comes out to be less than 1, there is negative association. Case control study is also known as backward looking study, retrospective study, effect to cause study, disease to risk factor study, outcome to exposure study. It is also known as Trohock study. Wait. What is Trohock? Cohort का inverse is Trohock. Case control study seems inverse to cohort study, so it is also known as Trohock study. Cohort को रिवर्स करके मैं अगर पढ़ता हूँ तो ट्रोहोक आता है। तो सर हमने जो केस कंट्रोल स्टडी में 100 केसेस ऑफ लंग कैंसर लिए और 100 सब्जेक्ट्स विदाउट लंग कैंसर लिए, तो सर हम इसमें कुछ रेशो रखेंगे या कुछ भी ले लेंगे? 100 केसेस लंग कैंसर के लिए और 50 केसेस विदाउट लंग कैंसर ले लिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। आइडली हम देखें तो अगर हम सर 100 केसेस लंग कैंसर के ले रहे हैं तो हमें 400 सब्जेक्ट्स विदाउट लंग कैंसर लेने चाहिए। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, you have to keep minimum up to 1:1. Ideally, this ratio should be 1:4. But if it is not possible, you have to keep it 1:1. 100 केसेस लंग कैंसर के ले रहे हो तो कम से कम 400 सब्जेक्ट्स विदाउट लंग कैंसर जरूर लेने हैं। नहीं ले पा रहे तो कम से कम 100 तो लेने ही है। अगर 100 से कम ले रहे हो तो आपकी स्टडी इनवैलिड है। एट लास्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट ब्रीफ डिफरेंसेस बिटवीन कोहोर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी। सर कोहोर्ट स्टडी इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। 2024 में शुरू कर रहे थे, 2038 तक उस स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं। कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, मेरे कितने एक्सपेंसेस कंज्यूम हो रहे हैं। वेरी एक्सपेंसिव स्टडी। सर कोहोर्ट स्टडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इंसिडेंस and relative risk. Mind it, relative risk is always accurate than odds ratio. So due to accuracy of relative risk, cohort study is always better than case control study. In cohort study there is no recall bias. सर मैंने 100 केसेस ऑफ लंग कैंसर लिए केस कंट्रोल स्टडी में और 100 सब्जेक्ट्स लिए विदाउट लंग कैंसर। उनमें से मैंने पूछा कि सर आपने पिछले 10 साल में कभी स्मोकिंग करी है? सर एक सब्जेक्ट विदाउट लंग कैंसर, उसने पिछले 10 साल में 6 महीने स्मोक किया, और एक सब्जेक्ट विद लंग कैंसर, उसने भी पिछले 10 साल में 6 महीने स्मोक किया। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तो ये है कि सर जिसको लंग कैंसर हुआ उसको ज़्यादा याद रहने के चांस है कि उसने स्मोक किया था। सर मेरे को लंग कैंसर हुआ ही नहीं, मैंने 6 महीने स्मोक किया था पिछले 10 साल में, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा यार, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसा उसका रिजल्ट या आउटकम तो आया नहीं। तो सर दिस इज द रिकॉल बायस। एक लड़के का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ और दूसरे लड़के का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स, एक पर्टिकुलर ऐप को स्टडी कर रहा हूँ कि उस ऐप से इन दोनों ने स्टडी की थी या नहीं। जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ, मैंने उससे पूछा तुमने इस रिसोर्स से स्टडी की थी? उसका जवाब आया हाँ की थी, 15-20 दिन की थी। ठीक है सर। दूसरे से पूछा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कह रहा है मैंने तो नहीं की स्टडी उस रिसोर्स से। शायद उसने करी भी हो, उसके सामने रिजल्ट नहीं आया, उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उसके ज़्यादा चांस है कि उसने कौन से रिसोर्स से 10 से 15 दिन उस रिसोर्स से स्टडी की थी या नहीं। उसे याद रहने के कम चांस है, क्योंकि सिलेक्शन तो हुआ नहीं, एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर हुआ नहीं। इन केस ऑफ कोहोर्ट स्टडी देयर कैन बी एट्रिशन।
What is attrition? Among study subjects, some of them don't want to continue the study, don't want to be the subject of the study, so they lose to follower. So maximum attrition can be 5%. If it is more than 5%, then your study is invalid. Cohort study, multiple outcomes can be studied together, and in case of case control study, multiple risk factors can be studied together. In case of cohort study, there is Hawthorne bias. Let's take an example of smoking and lung cancer. सर स्मोकर को हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के कारण स्टडी सब्जेक्ट स्मोकिंग करना छोड़ दे? हाँ, पॉसिबल है. सो दिस इज हावथॉर्न बायस. स्टडी सब्जेक्ट्स अल्टर देयर बिहेवियर विदाउट नोटिस. सो दिस इज सीन इन cohort study. Ethical problems can be seen in case of cohort study. सर मैंने 100 केसेस 100 स्मोकर्स लिए और 100 नॉन स्मोकर्स लिए 2024 में. 2028 तक उन 100 स्मोकर्स में से 10 को लंग कैंसर हुआ और नॉन स्मोकर्स में से 1 को लंग कैंसर हुआ. तो सर मैं आसानी से देख पा रहा हूँ कि स्मोकर्स में लंग कैंसर होने के चांस कितने ज़्यादा हैं. मुझे अपनी स्टडी से पता चल पा रहा है कि स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर. तो क्या ये मेरे इथिक्स, क्या ये मेरी मोरल वैल्यूज के अंडर नहीं आता कि मैं स्मोकिंग सिजेशन उन बाकी 90 में कराऊं? उन बाकी 90 स्मोकर्स को मैं कहूं कि आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी? यस, मुझे कहना चाहिए. क्या मैं अपनी स्टडी के लिए उन 90 स्मोकर्स को स्मोक करने दूं? क्योंकि मुझे लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में एक एसोसिएशन चाहिए. मुझे 10 इयर्स की स्टडी पूरी करनी है. क्या एथिकल प्रॉब्लम्स नहीं है? हाँ है, एथिकल प्रॉब्लम्स हैं. एथिकल प्रॉब्लम्स किस में है? कोहोर्ट स्टडी में. कोहोर्ट स्टडी इज नॉट यूजफुल फॉर रेयर डिसीजेस. सिंपल टर्म्स में एक एग्जांपल लेते हैं. एक डिसीज का प्रेवलेंस है 0.1%. ठीक है सर, 0.1% डिसीज प्रेवलेंस है और उसका एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर मैं स्टडी कर रहा हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. मान लो सिस्टिक फाइब्रोसिस का प्रेवलेंस केवल 0.2% है. 0.2%, 0.2% मीन्स आउट ऑफ 1000 चांसेस ऑफ हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ओनली 2. ठीक है सर, मैंने कोहोर्ट स्टडी बिगिन कर दी. 2024 में मैं एक जीन को स्टडी कर रहा हूँ, उसका एसोसिएशन सिस्टिक फाइब्रोसिस से मैं स्टडी करता जा रहा हूँ. मैंने अपने जीवन के 14 साल लगा दिए, बहुत खर्चा कर दिया. उसके बाद भी कोई चांस नहीं है कि उनमें से कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट आएगा, क्योंकि सर प्रेवलेंस ही इतना कम है. मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, इतना अपना टाइम लगा रहा हूँ और प्रेवलेंस है नहीं, और उसके पक्का चांस भी नहीं है कि उनमें से कोई पॉजिटिव आएगा, उनमें से किसी को डिसीज होगा. कोहोर्ट स्टडी इज नॉट यूजफुल फॉर rare diseases, and for rare diseases we use case control study. सीधा सीधा मैंने 20 केसेस सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए एंड 20 सब्जेक्ट्स लिए विदाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करी और सीधा सीधा मैंने एसोसिएशन निकाल दिया. ओड्स रेशो से बात खत्म. ना खर्चा ना कुछ, प्रेवलेंस वैसे इतना कम है, मुझे इतना फॉलोअप भी करने की जरूरत. सो केस कंट्रोल स्टडी इज यूजफुल फॉर रेयर डिसीजेस. सो आई एम वाइंडिंग अप द वीडियो. एट लास्ट आई वांट टू से दैट इफ यू आर नॉट happy with what you have today, keep it in your mind. You wouldn't be happy with what you are aspiring today. I am not saying you shouldn't have aspirations. I am not saying you don't have to work hard, you don't have to dream, you don't have to aspire, but you have to be happy with what you have today. Okay, bye guys.